students, how are you all? I'm sure all of you are doing good. Let's start today's chapter, Data and Memory. Learning objectives. How computer works, data and information, and memory. Hi kids, after having fun with paint, now you will learn how a computer works. Okay, previous chapter में हमने पढ़ा था किसके बारे में, किस तरह से हम पेंट करते हैं, और अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर जो है वो वर्क करते हैं. Okay, now let's get started. How computer works. In school, when your teacher gives certain instructions like open your notebook, draw a line, etc., you follow them. Similarly, the computer also needs some kind of instructions from you to work. The instructions given by you to a computer are in the form of data. स्कूल में देखिए जब आपकी टीचर्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं, राइट, लाइक आप अपनी नोटबुक ओपन करें या लाइन ड्रॉ करें, तो आप क्या करते हैं, हमने फॉलो करते हैं. ओके तो इसी तरह से कंप्यूटर को वर्क करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है और उन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से फिर वो वर्क करता है. ओके तो जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं ना, उसे डेटा की फॉर्म में देते हैं. ओके computer follows those instructions, processes them and shows you the final result. The final work done by the computer is in the form of information. अब कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनको फॉलो करता है, उनको प्रोसेस करता है, देन वो आपको फाइनल रिजल्ट शो करता है. तो फाइनल वर्क जो होता है आपका कंप्यूटर जो करता है वो आपकी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में होता है. You have learned that to work with a computer, you need to give it some kind of data and instructions to get information. Let us understand it. Data and information. Data is a collection of unorganized words, numbers and images. Okay. For example, okay, see, data जो है ना आपका collection होता है unorganized words का, numbers का या images का. जैसे कि देखिए बच्चा इसमें लिखा है, जो इसने शीट पकड़ी है, class 3 rupees 5,000 A Rahul roll number 8 section. What is this? This is a data. ये unorganized words and numbers है, right? And information is a meaningful and organized form of data. Given below is the information based on the data given above. अच्छा देखिए, अब ये जो लेफ्ट साइड में बच्चे ने जो शीट पकड़ी है, इसमें क्या लिखा है? राहुल is in class 3, he is in section A, his roll number is 8, his monthly fee is rupees 5,000. Okay, as you can see, this is the meaningful data और ये organized form है data का, तो इसे हम कहते हैं information. जबकि जो above information है, इससे हमें ये जो data है, ये एक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है. ओके मीन्स ये अनऑर्गेनाइज्ड आपका वर्ड्स है जो हमें ये ऊपर नजर आ रहा है. जबकि जो लेफ्ट साइड में है, दिस इज नोन एज इन्फॉर्मेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा. ओके the main work of a computer is to accept data from you and convert the data into information. Finally, it stores that information in its memory. तो मेन वर्क जो कंप्यूटर का होता है कि वो आपसे डेटा को एक्सेप्ट करता है और उस डेटा को फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, एंड देन फाइनली वो इस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है. ओके नाउ व्हाट इज मेमोरी? You remember your name, address, contact number, etc. because this information is stored in your memory. That is brain. Similarly, computer can also remember the data and information by storing them in its memory. Computer has a larger memory than humans and doesn't forget anything. आपको जैसे अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब याद रहता है. क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी यानी आपकी ब्रेन में स्टोर्ड है. तो इसी तरह से कंप्यूटर जो है वो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है अपनी मेमोरी में. कंप्यूटर की बहुत बड़ी मेमोरी होती है. ओके इवन आपकी ह्यूमन से भी ज़्यादा, और वो कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं भूलता है. ओके इन अ नटशेल, computer takes instructions from us in the form of data. Data is a collection of unorganized words, numbers and images. Information is a meaningful and organized form of data. A computer remembers the data and information by storing them in its memory. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करता है. ओके इंस्ट्रक्शंस लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है, देन हमें फाइनल रिजल्ट देता है, और सारी ही अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है. ओके स्टूडेंट, असेसमेंट जोन ए, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड. अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? जैसे कि हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था, इट्स ए डेटा, नॉट मेमोरी, नॉट इन्फॉर्मेशन. ओके एंड 2, डैश हैज अ लार्जर मेमोरी देन ह्यूमंस. ह्यूमन से ज़्यादा मेमोरी किसके पास है? ए कंप्यूटर, बी टेबल और सी माइक्रोवेव. It's
ए कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे एंड साथ ही साथ चैप्टर की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे।